السلام علیکم. آج ہم بات کریں گے انڈین الیکشنز میں. اس سے پہلے کہ 4 جون ختم ہو ہمیں پتہ چل چکا ہوگا کہ انڈیا میں کس کی حکومت دوبارہ بننی ہے اور کون وزیر اعظم بنیں گے. اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر خرم عباس نے. پال تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. دیکھیں بہت ہی انٹرسٹنگ ریزلٹس آ رہے ہیں اور ایکسپیکٹیشنز کے برخلاف ریزلٹس ہیں. جو ایکسپیکٹیشنز تھیں وہ یہ تھیں کہ موسٹلی جو پولسٹرز تھے وہ سارے ایکسپیکٹ کر رہے تھے 330 سے 350 کی سیٹس جو ہیں وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے بی جے پی کے لیے، اور این ڈی اے کے لیے 360 to 370 سیٹس جو ہیں وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. لیکن جو ابھی تک کے فگرز آ رہے ہیں ان میں بی جے پی نے اراؤنڈ 294 آنورڈس سیٹس لی ہیں سم ویئر، جو کہ 50 سیٹس کم ہیں این ڈی اے کی. اوور آل جو این ڈی اے کی سیٹس ہیں وہ 293 294 ہیں، جو کہ 50 سیٹس کم ہیں ایز کمپیئر جو ہم پچھلی لوک سبھا کو دیکھیں تو. اس کے مقابلے میں جو انڈیا الائنس ہے انہوں نے اس دفعہ بہت اچھے لیول پہ جو ہے نا وہ کانٹیسٹ کیا الیکشن، اور جو ابھی تک فگرز آ رہے ہیں اس کے مطابق 233 234 سیٹس جو ہیں وہ انڈیا الائنس نے حاصل کی ہیں، جو کہ زیادہ ہیں 2019 کے مقابلے میں 106 107. تو یہ بہت بڑا مارجن ہے کہ جس میں آپ 106 107 سیٹیں زیادہ لیں ایز کمپیئر ٹو پریویس الیکشن. اچھا آپ نے بات کی وہ ایودھیا وغیرہ کی، یو پی کی. تو انٹرسٹنگلی جو ایکسپیکٹیشنز تھیں فار ایگزامپل وہ اگر آپ کچھ میں آپ کو جو سلوگنز ہیں وہ بتاتا ہوں. جیسے ایک تھا اب کی بار 400 پار، تو ایک تو وہ سلوگن پورا نہیں ہوا، اور دوسرا ایک نعرہ تھا اب کی بار 10 لاکھ پار، جو کہ پرائم منسٹر مودی کے لیے یوز کیا جا رہا تھا کہ جو ان کی کانسٹیٹوئنسی ہے وہاں پہ وہ لے پائیں گے سیٹس. لیکن ابھی تک وہاں پہ جو ووٹ کاؤنٹنگ ابھی جاری ہے، بٹ جو ابھی تک جو لیڈ لے کے جا رہے ہیں پرائم منسٹر مودی وہ 70,000 یا 80,000 کے قریب وہ لیڈ ہے ان کی. تو اگین سیٹ تو ان کی کنفرم ہو رہی ہے، بٹ جو ایک وہ جو نعرہ تھا کہ 10 لاکھ پار کے، وچ مینس کہ 10 لاکھ سے زیادہ وہ سیٹ اس میں ووٹس لے جائیں گے، اور وہ بھی نہیں ہوا. پھر انٹرسٹنگلی جو امیٹھی ہے وہاں پہ آپ دیکھیں تو اگین ریوائول ہوا ہے، جو وہاں پہ جو کانگریس کے کینڈیڈیٹ ہیں، اور جو سمرتی ایرانی ہیں وہ وہاں پہ ہار گئی ہیں. نیو دہلی کے اندر بھی ابھی بہت زیادہ جو ہے وہ کنٹیسٹ ہو رہا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہاں بھی جو کانگریس ہے یا انڈیا الائنس ہے وہ 2-3 سیٹس نکال جائے گی. یو پی میں آپ نے خود جو ہے وہ اس کا ذکر کر دیا، تو یو پی کے اندر، بنگال کے اندر، کرناٹکا کے اندر موسٹلی جو سیٹس ہیں وہاں پہ ریوائول ہوا ہے انڈیا الائنس کا. تو اوور آل اگر آپ دیکھیں تو ڈیفینیٹلی بہت بڑا جو ہے ایک سیٹ بیک ہے بی جے پی کے لیے ایز اے پولیٹیکل پارٹی، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم این ڈی اے کے لیے ایز اے الائنس، کہ کس طرح سے وہ جو ایکسپیکٹیشنز تھیں. پلس دیکھیں جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں وہ اور جو ان کے جو یہ بیسیکلی اس طرح ہے جیسے کہ اسٹیٹ کیپیسٹی کے اندر جو اکیڈیمکس ہیں وہ کہتے ہیں کہ لیجیٹمیسی، کہ آپ کے پاس جو لیجیٹمیسی ہے پبلک کی وہ کتنی ہے. فار ایگزامپل اگر یہی 2/3 میجورٹی ہوتی تو ایک بیہیویئر ڈفرینٹ ہوتا ہے کسی بھی گورنمنٹ کا، اور اس کیس میں بی جے پی کا اور این ڈی اے کا ایک ڈفرینٹ بیہیویئر ہوتا. بٹ اب اس اسمال میجورٹی کے ساتھ، اور وہ بھی کولیشن گورنمنٹ، کیونکہ یاد رکھیں بی جے پی کی جو ابھی تک سیٹس ہیں وہ 242 کے راؤنڈ اباؤٹ، جو کہ شام تک ایک پکچر کلیئر ہوتی. لیکن یہ کہ اب ان کی جو میجورٹی ہے وہ خود گورنمنٹ بنانے کے قابل نہیں ہے، ان کو این ڈی اے کی حمایت حاصل کرنی پڑے گی. تو ڈیفینیٹلی وہ ریلائی کریں گے اب جو چھوٹی پارٹیاں ہیں جو این ڈی اے کے اندر ہیں، تو ان کو کہیں نہ کہیں کمپرومائزز بھی کرنے پڑیں گے. کہیں نہ کہیں ان کو جو ہے وہ اپنے جو ان کا مینیفیسٹو ہے اس کو کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرنا پڑے گا. تو ایک بیہیویئر ڈفرینٹ آ جاتا ہے اگر آپ کے پاس اوور آل میجورٹی 2/3 یا سمپل میجورٹی نہ ہو، تو اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے آپ کی فارن پالیسی پر بھی، آپ کی ڈومیسٹک پالیسی پر. لیکن ڈاکٹر صاحب سب کچھ کر کے دیکھ لیا نریندر مودی نے. مجھے ابھی میں نے جب آپ سے کنیکٹ ہم نے شو کے لیے کرنا تھا تو میری ایک سوشل میڈیا پر میں نے ظاہر چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں تو بڑا ایک کافی ٹویٹس جو سامنے آئی، کیونکہ اتر پردیش میں مسلمانوں کی آبادی بھی زیادہ ہے اور انہوں نے
नरेंद्र मोदी को ज़ाहिर है वहाँ बीजेपी को उस तरह से वोट नहीं किया जिस तरह से वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। मेरा सवाल डॉक्टर साहब आपसे ये है कि जब आप एक कम्युनिटी को इतना मार्जिनलाइज़ करें, यानी कि कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं है जो आपने छोड़ा ना हो, आपने उनको घुसपैठिया कहा, आपने कहा कि बच्चे पैदा करके आपकी मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में बदल देंगे, हिंदुओं को ये भी कहा कि ये आपकी भैंसें चोरी करके ले जाएँगे, ये भी कहा कि हिंदू औरतों के मंगलसूत्र बेच देंगे। यानी कि उनके ऊपर कितने इल्ज़ाम उन्होंने लगाए और फिर एक खाली नरेंद्र मोदी ने नहीं, योगी नाथ ने भी, उनके बाद जो बाकी इनके लीडरान हैं, उन सब ने किसी न किसी तरह से मार्जिनलाइज़ करने की कोशिश की, लेकिन उसके और फिर ये एक्सपेक्ट करना कि वहाँ से मुसलमान जो है वो इनको वोट करेंगे, ये कितनी बड़ी गलतफ़हमी थी इनकी। एग्जैक्टली देखिए 2-3 इसमें मैं पहलू जो है ना वो उस पे हाईलाइट करूँगा। नंबर 1 अगर आप देखें तो एक तो आपने मुसलमानों का ज़िक्र कर दिया, फिर जो स्केड्यूल्ड कास्ट्स हैं, इसी तरह जो दलित्स हैं, इस तरह से जो बाकी जो कम्युनिटीज़ हैं, जो स्केड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, इस तरह के जो डिफरेंट और सो ओबीसीज़ हैं, सो मोस्टली वो लोग स्पेशली दलित्स का मैं ज़िक्र यहाँ पे ज़रूर करूँगा कि ये जो रिलीजन कार्ड है ना, ये रिलीजन कार्ड आप एक ख़ास कम्युनिटी के लिए तो यूज़ कर सकते हैं, बट वहाँ पे जो एक डाइवर्सिटी है इंडिया के अंदर, जिसमें आपने मुसलमानों का ज़िक्र कर दिया, मैं दलित्स का ज़िक्र कर रहा हूँ, ओबीसीज़ का ज़िक्र कर रहा हूँ, एसटीज़, एससीज़ का ज़िक्र कर रहा हूँ। ये वो हैं कम्युनिटीज़ जो बेसिकली डिप्राइव्ड हैं इकोनॉमिकली, सोशली। तो कहीं न कहीं एक जो नारा था अगर आप देखें इंडियन नेशनल कांग्रेस का और टू सम एक्सटेंट इंडिया अलायंस का, कि अगर आपने 2/3 मेजॉरिटी दे दी तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, ये इसमें जो सो एक खौफ था लोगों के अंदर, और ये जो वोट आया है ये उस बात का रिएक्शन है। और दुर्दाना मैं एक बात और कहूँगा कि आप आइडियोलॉजी या रिलीजन के ऊपर कब तक वोट मांगेंगे? आपको अल्टीमेटली ये ना रिलीजन से ना आइडियोलॉजी से पेट भरते हैं। आपके सामने सोवियत यूनियन की मिसाल है, और भी इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं कि अल्टीमेटली आपको डिलीवर करना पड़ेगा। आप पिछले 4-5 साल में देखें तो बहुत सारे सेटबैक्स हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखें जो कोविड 19 जो आया था सून आफ्टर जो 2019 के इलेक्शंस हैं, तो जिस तरह से शट डाउन किया गया प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से, उसके ऊपर बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म था। लोगों की जिंदगियां उसमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई। फिर इसी तरह अग्निपथ एक स्कीम आई थी जिसमें वो टेम्पररी लेवल पर वो अपॉइंटमेंट्स कर रहे थे जो लोगों की वो फौज के अंदर। तो इस तरह की स्कीम की वजह से जो यंग जनरेशन है उसमें बहुत ज़्यादा एक ओवरऑल एक कंसर्न था। फिर अनएम्प्लॉयमेंट है, फिर आप देखें तो अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, और इसी तरह इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल नहीं कर सके, डिस्पाइट के उन्होंने कोशिश बहुत की है। बट जो मैक्रो इकोनॉमिक फिगर्स थे वो तो ठीक थे, लेकिन जो माइक्रो इकोनॉमिक फिगर्स हैं जो अल्टीमेटली अफेक्ट करते हैं डे टू डे लाइफ पे लोगों की, उनमें कोई ख़ास जो है वो इम्प्रूवमेंट नहीं आई। और मेरे ख्याल से ये जो आप देखें तो ये बैक अब एक वो जिसे कहते हैं बैक टू स्क्वायर वन, ये ऐसा जो मैंडेट मिला है इनको वापस इनको 2014 में ले गए हैं। 2014 में जिस तरह की सीट्स थी ऑलमोस्ट मोर और लेस उनको वही सीट्स मिली हैं। तो और मेरे ख्याल से इसकी इम्प्लीकेशंस भी बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप बीजेपी को देख लें तो बीजेपी के अंदर आप डेफिनेटली एक जो रिफ्ट्स हैं वो बढ़ेंगी लीडरशिप के लिए, क्योंकि 2019 के इलेक्शंस के बारे में अब लोग सोचना शुरू कर देंगे। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि यूपी के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वीटो किया या बाईपास किया जो यूपी के सीएम हैं आदित्यनाथ, उनको उनकी जो लिस्ट थी जो कैंडिडेट्स के लिए, उनको उन्होंने जो है वो रिजेक्ट किया, उसकी जगह अपनी लिस्ट लेकर आए। तो कहीं न कहीं अंडर द सरफेस जो है वो एक वो टसल या कॉन्टेस्ट चल रहा है। तो डेफिनिटली जो एक कंसिडर किया जा रहा था कि मोदी एज़ अ यूनाइटिंग फैक्टर, मेरे ख्याल से अब कहीं न कहीं डायमिनिश हो रहा है। अच्छा, ये भी खबरें मैंने अभी जब देख रहे हैं हम सोशल मीडिया भी ज़ाहिर है और वैसे इनका मेन स्ट्रीम मीडिया भी, जो ज़्यादा बात की जा रही है वो यही की जा रही है कि इनके इंटरनल इतने डिस्कॉर्ड थे, इतनी इंटरनल जो है वो चपकलिशें चल रही थी। और कुछ लोग कहते हैं कि जी जो अमित शाह है वो ही वाज़ वेरी स्केयर्ड ऑफ योगी और वो उनको डिफीट करना चाह रहे थे, जिसकी वजह से ये भी बातें हो रही थी। मैंने कई शोज़ भी देखे इस पर थे कि योगी को जो है वो हटा दिया जाएगा सीएम को। उसके बाद डॉक्टर साहब जिस तरह से आप देखिए कि ऑपोजिशन को इन्होंने सप्रेस किया है, हालांकि यू नो
जिस तरह से केजरीवाल को वो तो दोबारा जेल चले गए, वो 3 हफ्ते की बेल पर थे। उसके बाद और भी सीएम्स थे मुख्तलिफ स्टेट्स के, उनको भी जेल में बंद किया गया। और बल्कि अभी पिछले दिनों उन्होंने फिर धमकी दी है। वो जो वेस्ट बंगाल के भी थे, उनको भी कहा कि जी आप हम वंस वी विन वी विल पुट यू इन जेल। तो बिहार के, सॉरी, अखिलेश यादव, उनको भी इन्होंने, तो सर ये जो इनका एक फिनोमेन, एक अथॉरिटेरियन एक ऑरा जो अपनाया हुआ था इन्होंने, नरेंद्र मोदी ने, ये कितना डैमेज हुआ है। और फिर उसके बाद आपको कैसे लगता है कि जो अभी जो ये आगे की जर्नी होगी, विल ही बी एबल टू मेंटेन दैट ऑरा, वो वकास, भारत वकास और ये सब कुछ लेकर? देखिए जो एक वो एंटी मोदी फैक्टर था या एंटी बीजेपी फैक्टर था ना, या जो एंटी बीजेपी या एंटी मोदी जो है वो एक सेंटीमेंट था सोसाइटी के अंदर, वो कहीं ना कहीं जो है आपको एक ट्रिगरिंग पॉइंट्स होते हैं। तो अगर आप देखें तो जनवरी 17 तक, जब तक ये वो अयोध्या में राम टेम्पल उन्होंने इनॉग्रेट किया, तब तक एक वो कंफर्टेबल नजर आ रहे थे। बट जैसे ही फरवरी में इन्होंने एक अनलीश किया इस कॉन्फिडेंस के साथ कि हम जो है वो फर्दर जो है वो सप्रेस करते हैं जो अपोजिशन पार्टीज हैं और अपोजिशन लीडर्स को गिरफ्तार करते हैं फ्लिमजी केसेस में। और फिर जो इसी तरह एक और फैक्टर आया जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो फैक्टर था। तो अगर आप देखें तो पिछले 3-4 महीने में बेसिकली बीजेपी ने या मोदी ने खुद एक मटेरियल प्रोवाइड किया है इंडिया अलायंस को कि वो इसके ऊपर क्रिटिसाइज कर सकें। आप अगर देखें तो कहीं ना कहीं जो एक सिंपैथी का वोट और फियर फैक्टर, एक फियर का भी वोट, फियर मुसलमानों के अंदर भी, दलित्स के अंदर भी, और इसी तरह अपोजिशन पार्टीज के अंदर भी। याद रखें ये जो इंडिया अलायंस है ये कोई आइडियोलॉजिकल अलायंस नहीं है, ये एक खास अलायंस है सिर्फ उस बड़े खतरे के सामने के जिसके बारे में वो कह रहे थे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर देंगे और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट्स करके शायद जो है वो इसमें से सेकुलरिज्म खत्म कर दें और इसी तरह कुछ रिजर्व्स जो कोटास वगैरह हैं वो खत्म कर दें। तो एक जो खतरा था डेमोक्रेसी का नाम लिया जा रहा था, फिर जो अपोजिशन पार्टीज को जिस तरह से टारगेट किया गया, फिर एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो देखें, जो आप कैंपेन करते हैं किसी भी मुआशरे के अंदर, अगर वो सिलेक्टिव कैंपेन हो, एंटी करप्शन कैंपेन, तो वो बहुत जो है वो डैमेजिंग होती है। और ये चीज़ आपको इंडिया के अंदर अभी रिसेंटली नज़र आएगी। वो जो ईडी का जिक्र करते हैं कि किस तरह से ईडी ने जो है वो सिलेक्टिव एंटी करप्शन कैंपेन शुरू की। बल्कि इंटरेस्टिंगली आप देखें तो जो इंटरव्यूज़ हैं और जो रिसेंटली जो लोगों को शामिल किया गया बीजेपी के अंदर, उसका एक जो इंटरेस्टिंग है वो ये कि बीजेपी ने एक लॉन्ड्री ओपन की हुई है जहां पे वो जितने भी करप्ट पॉलिटिशियंस हैं उनको लेकर आते हैं और उनसे सारे उनके केस उनसे धुलवा कर उनको पाक साफ करके अपने पास बीजेपी के अंदर शमूलियत इख्तियार करवा लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो एक सेलेक्टिव एंटी करप्शन कैंपेन का एक जो जिक्र था, तो वो भी सेंटीमेंट लोगों के अंदर जो है वो पाया जाता था। तो बहुत सारे फैक्टर्स थे, बट मेरे ख्याल से बीजेपी ने या एनडीए ने ओवरऑल खुद एक जो मटेरियल है या कैंपेन के लिए जो स्लोगन्स हैं वो प्रोवाइड किए हैं अपोजिशन को। और आप देखें तो ये बेसिकली ओवर कॉन्फिडेंस होता है किसी भी हुक्मरान के लिए। आप हिस्ट्री में बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं कि जहाँ पे वो ओवर कॉन्फिडेंस में हुक्मरान जो है वो इस तरह के बहुत सारे गलत फैसले कर जाते हैं और अल्टीमेटली नुकसान उठाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपने विकास भारत का सुना, मतलब बार बार नरेंद्र मोदी कहते थे कि जी विकास यानी कि भारत को हम ग्रो करेंगे, और उसके बाद वो बहुत जिस तरह के फिगर सामने आते थे, और जब इलेक्शन कैंपेन में वो निकले, जहां भी जाते थे लगता था कि कितने बड़े बड़े मंसूबे जो हैं वो ओपन उसके मतलब उसका इफ्तितार कर रहे हैं। लेकिन उन लोग जो थे वो उनकी तमाम जो ये ऑप्टिक्स थे, ये तमाम जो उनके जो उन्होंने फ्यूचर के लिए मंसूबे बताए थे, ऐसे लगता है कि लोग उससे इम्प्रेस नहीं हुए। और क्या वजह है डॉक्टर साहब कि इतनी ग्रोथ के बावजूद, वैसे तो है तो सही, क्योंकि अगर मतलब अगर हम रियलिस्टिकली बात करें तो जो इनकी प्रोजेक्शंस थी अपनी, उससे भी 2% ज्यादा ही इंडिया ने ग्रो किया है, और दुनिया उस चीज को ऑब्वियसली मतलब अप्रिशिएट भी करती है। और ये भी है कि ये कोई हमारे नहीं इंटरनेशनल फिगर्स है जिसके मुताबिक के भी विद इन कपल ऑफ इयर्स इंडिया विल बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी व्हाट एक्सप्लेन्स कि वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है और पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड, और उनके पास इकोनॉमिक जो एम्पावरमेंट है वो लैक करती है।
देखिए पिछले 10 साल में डेफ़िनेटली पॉलिटिकल फ्रंट पे भी और इकोनॉमिक फ्रंट पे भी आपको एक जो है वो कॉन्फिडेंस पॉलिटिकल लीडरशिप ने दिया है। मैं बीजेपी की और स्पेशली जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप इकोनॉमिक फ्रंट पे देखें तो ये पिछले 10 सालों के अंदर जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है बीजेपी के ऊपर और प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर, वो ये है कि इन्होंने एक के शेप इकोनॉमी बना दी है। तो अगर आप ज़रा ओके। के को अगर आप देखें तो के में ये होता है कि जो ऊपर का टियर है वो बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉफिट कमा रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा उसमें से जो है वो बेनिफिट्स ले रहा है। बट जो निचला हिस्सा है जो के का जो सोसाइटी के अंदर, वो इससे जो है वो डिप्राइव्ड है, वो महरूम है। जहाँ तक आपने बात की ग्रोथ की, तो अभी जो ग्रोथ है जो जीडीपी की वो मोस्टली जो है वो इम्पोर्ट लेड ग्रोथ है, जिसके अंदर इम्पोर्ट्स इन्होंने अब जो है वो बहुत ज़्यादा कर ली हैं। आप इनके जो फिगर्स हैं, अगर पिछली जो इनके टॉप 10 जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, जिसके अंदर यूएस है, चाइना है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, रशिया है, इन कंट्रीज़ को अगर आप देखें तो 10 आउट ऑफ 9 जो कंट्रीज़ हैं उनमें जो ट्रेड डेफिसिट है वो इंडिया के लिए जो है ना वो अनफेवरेबल है। फॉर एग्जांपल चाइना को आप देख लें, चाइना के साथ इस वक्त जो ट्रेड डेफिसिट है वो $100 बिलियन का है। तो जो इकोनॉमी है वो चल तो रही है, बट वो मोस्टली जो सर्व कर रही है वो टॉप 1% को बहुत ज़्यादा सर्व कर रही है, एंड देन जो अपर मिडिल क्लास है उसको बहुत ज़्यादा सर्व कर रही है। जो एक आपने फिनोमेना देखा था चाइना के अंदर कि जिस तरह वहाँ पे एक अपलिफ्ट किया गया, जो अराउंड फिगर्स डिफरेंट फिगर्स आते हैं, बट अगेन 80 मिलियन लोगों का कहते हैं कि 80 मिलियन लोगों को वहाँ पे जो है ना वो अपलिफ्ट किया गया। तो सॉरी 800 मिलियन। तो जो ये फिगर्स हैं अगर आप देखें तो उसको अगर आप देखें तो उसमें यहाँ पे जो ओवरऑल एक फैक्टर है कि यहाँ पे अपलिफ्ट करने का जो सवाल आता है इंडिया के अंदर, उस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी पाई जाती है। मोदी प्राइम मिनिस्टर ने मेरे ख्याल में रिसेंटली कुछ ज़िक्र तो किया है कि हमने 25 मिलियन लोगों को जो है वो अपलिफ्ट कर दिया है पॉवर्टी से। बट इन को कोई जो है वो इंटरनेशनल एजेंसी जो है वो चेक नहीं कर पा रही कि क्या वाक़ई इस तरह से है कि नहीं। दूसरी तरफ आप अगर देखें तो जो फॉर एग्ज़ाम्पल जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे ये रिलायंस है, टाटाज़, बिरलाज़ और अंबानीज़, सो इनका ये है कि इन्होंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट कमाया है। ऑब्वियसली उसका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, उससे इम्पैक्ट तो आया है सोसाइटी के अंदर। बट अभी तक उसका जो एक रूरल इंडिया है, उसके अंदर जो इम्पैक्ट है वो बहुत कम है। तो मेरे ख़्याल से ये एक फैक्टर भी वहाँ पे मौजूद है। कहीं न कहीं इकॉनमी जो है ना वो और मैं आपको बताऊँ पिछले 4-5 साल में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिनमें कहीं न कहीं कोई न कोई सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो है वो इम्पैक्ट उसके ऊपर आया है, इफ़ेक्ट उसके ऊपर आया है। फॉर एग्ज़ाम्पल फार्मर्स को देख लें, आप हरियाणा में देख लें जिस तरह का अभी रिज़ल्ट आया है। हरियाणा, पंजाब, तो फार्मर्स का आप देख लेंगे। इसी तरह मुसलमानों का आपने ज़िक्र कर दिया कि किस तरह से वहाँ पे सेंटीमेंट था। दलित्स हैं, फिर जो यूथ एक डिस्ग्रंटल्ड यूथ है बिकॉज़ ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, तो वो फैक्टर भी था। तो इकोनॉमी ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक फिगर्स जो हैं वो इम्प्रूव हो रहे हैं, बट जो आम आदमी है उसके लिए जो माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं कि मुझे चीनी मिलेगी, घी कितने का मिलेगा, मेरी बिजली का बिल कितना है, मुझे जो है वो साफ पानी मिल रहा है, खाने-पीने की अशिया मिल रही हैं, सर्विसेज़ हैं गवर्नमेंट की, वो मुझे इज़िली अवेलेबल हैं। अगर वो चीज़ें नहीं मिलेंगी तो वो सैटिस्फैक्शन लेवल जो है सोसाइटी के अंदर और स्टेट के दरमियान गैप बढ़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल आपसे मैंने पूछना है, जब मैंने आखिरी फिगर्स देखे थे, जहाँ-जहाँ इंसर्जेंसी टाइप की सिचुएशन है या है, जैसे कश्मीर हो गया, मणिपुर हो गया, अब पंजाब भी बहुत डिससैटिस्फाई रहता है बीजेपी से और उनकी इतनी ज़्यादा मैंने जितने भी आप इनके फिगर्स देखे हैं, यहाँ भी बिल्कुल राउट आउट किया है बीजेपी को वहाँ, बल्कि वहाँ मणिपुर में तो बिल्कुल सिफ़र कोई उनको ही मतलब एक सीट भी नहीं मिली। व्हाट डज़ दिस ऑल्सो क्योंकि और जब आपको मुझसे ज़्यादा ज़ाहिर है आप जानते हैं कि ये लोग तो जब वहाँ इंसर्जेंसी जब वहाँ वो जो दो क्लैन्स हैं उनके दरमियान जब कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए नोबडी इवन वेंट देयर कि जाकर जो है वो सिचुएशन को कंट्रोल किया जाता और बड़े मैंने माई सेल्फ रेड इंटरनेशनली लोगों ने इसको कंडेम भी किया था कि बीजेपी वॉज डिसइंटरेस्टेड के जो ट्राइबल जो उनके वहाँ इलाके हैं वहाँ जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए
फोर्स के साथ ही वहाँ भी उन्होंने ये कोशिश की कि चीज़ों को क्वेल किया जाए। तो ये जो कश्मीर के हवाले से भी आपको पता है कि 370 को ही अपना बैच समझते थे कि जी हमने बहुत बड़ा मार्का ठीक है मारा होगा उनकी अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स में अगर देखा जाए। लेकिन उसके बावजूद फिर हम ये भी देखते थे कश्मीर के हवाले से कि जी पता नहीं कितने बिलियन डॉलर्स की जो है वहाँ इन्वेस्टमेंट भी हुई। तो ऐसे अपैरेंटली लगता है कि अभी भी आप देखें कि वहाँ मतलब इसका मतलब है कि बीजेपी हैज़न्ट फाउंड देयर फीट ओवर देयर, इसीलिए शायद उन्होंने वहाँ अपने कैंडिडेट भी उस तरह से खड़े नहीं किए थे। तो व्हाट डज़ इट आल्सो एक्सप्लेन कि फ्यूचर में ये उनको वो जो नाराज़ लोग हैं वहाँ के उनको मेन स्ट्रीम में लाने के में कामयाब हो जाएँगे ये सारी चीज़ें? अच्छा, इसमें 2 फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर का तो आपने हवाला दे दिया कि किस तरह से एक जो ओवरऑल पॉलिसी थी कि एक ओवरऑल शो करवाया जाए कि किस तरह से कश्मीर के अंदर जो है वो नॉर्मल-सी रही है। नॉर्मली इसके सी बाद और दूसरी तरफ आपने जो ज़िक्र किया है मणिपुर का हुँ, और इसी तरह मिज़ोरम वगैरह के अंदर भी। हुँ, एक जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो इसके अलावा है वो ये है कि जो काउंटर टेररिज़्म पॉलिसी है हुँ, अमित शाह की, वो बहुत सिग्निफिकेंट है। उसमें वक़्ती तौर पर तो फ़ायदा ये हुआ कि मोस्टली जो लोगों को जो पुलिस हैं या पैरामिलिट्री फ़ोर्सेस हैं, उनको मौका दिया गया कि आप जो है वो एग्रेसिवली वहाँ पे रिएक्ट करें किसी भी इंसिडेंट के अगेंस्ट। तो वक़्ती तौर पर उससे रूल ऑफ लॉ तो सेट हो गया। लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे केसेस भी हुए हैं कि जिसके अंदर जो है वो आप उसको फ्रॉडुलेंट जिसे कहते हैं ना हुँ, कि अटैक्स कि जिसके अंदर जो पुलिस है वो किलिंग्स कर रही है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हैं, मर्डर्स हैं। तो इस तरह के भी इंसिडेंट्स आपको नज़र आएँगे, चाहे वो कश्मीर है या इसी तरह जो बाकी इंसर्जेंट एरियाज़ हैं। तो उससे क्या हुआ कि जो फैमिलीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा इससे फ़ील कर रही थीं, एक थ्रेटन्ड फ़ील कर रही थीं और इस चीज़ को लोकल लेवल पर जो पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा फिर इस्तेमाल भी किया है और लोगों को हुँ, बताया है कि अगर आपने प्राइम मिनिस्टर मोदी या बीजेपी को या एनडीए को वोट दिए, तो ये अगेन आपको जो है वो कत्ल करते रहेंगे और आपके खिलाफ जो है हुँ, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स जो हैं, वो इसी तरह जारी रहेंगी या हो सकता है कि ये जो एंटी काउंटर टेररिज्म पॉलिसीज़ हैं, हुँ, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएँ इन द फ्यूचर एज़ वेल। तो उस चीज़ का भी एक फैक्टर जो है वो यहाँ पे मौजूद था कि लोगों ने उस फ़ियर के अगेंस्ट भी वोट किया है। हुँ। बिल्कुल, डॉक्टर साहब ऐसे ही लगता है कि ये जो इनकी पॉलिटिक्स ऑफ हेट्रेड थी, एक किस्म की देखें हेट्रेड तो बहुत ज़्यादा नज़र आया है और पॉलिटिक्स ऑफ एजिटेशन को हवा देना और फिर क्लैम्प डाउन करना ऑपोज़िशन को, ये तमाम चीज़ें आप देखें कि एक टिपिकल मतलब जैसे लगता था कि नाज़ीज़ की जो टूल किट है, वहाँ से इन्होंने कोई मतलब ये सारी स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो ली हैं और उसको इम्पोज़ करने की कोशिश की और मुझे लगता है कहीं न कहीं वो एक होता है ना कि एक इनके ज़हन में बैठ गया था पता नहीं इनकम्बेंसी फैक्टर कह लें जो था कि यस वी आर गोइंग टू विन और बल्कि अब जो मैंने लेटेस्ट अभी खबरें सुन रही थी वो कहते हैं 400 पार तो दूर की बात है ये 300 पार भी कर ले तो शायद हुँ। मतलब बहुत बड़ी बात होगी तो डॉक्टर साहब चले जाते जाते ये बताएं कि अगर नरेंद्र मोदी एज ए बीजेपी लीडर इस तरह की पोजीशन में होते हैं कि वो ठीक है 300 मोदी थ्री 3O लेकिन प्रो नहीं 3.0 होंगे 3.0 होंगे लेकिन 3.0 प्रो नहीं होंगे। उसमें हुँ। कुछ ये गुंजाइश निकालेंगे कि जो इन्होंने हबरीस है कि जी पाकिस्तान से बात नहीं करनी, ये नहीं करना, फिर कुछ थोड़ा मेलो डाउन होगा और टेम्परेचर एंड दे विल कट themselves to the size and start behaving like good neighbors. जी, मैं आपके इस क्वेश्चन के ऊपर बाद में आता हूँ। वो जो आप पहले कमेंट कर रही थी ओवरऑल के किस तरह से जो है ना वो एक 300 से कम हो गए हैं। देखें हुँ, इससे एक जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये कि अब जो पिछले 10 साल के अंदर मोदी ने कहीं न कहीं जो हिंदुत्व का जो प्रोजेक्ट है, वो समहाउ कंप्लीट कर लिया है। आर्टिकल 370 कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह जो सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट है, वो कंप्लीट कर दिया है। यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड मेरे ख़्याल में अब उनकी प्रायोरिटी होगी नेक्स्ट गवर्नमेंट के हुँ, अंदर। इसी तरह जो टेंपल पॉलिटिक्स में जो राम टेंपल है, वो उन्होंने बिल्ड कर दिया है। तो कहीं न कहीं अब उनका जो हिंदुत्व प्रोजेक्ट है, वो उन्होंने 10 साल के अंदर कंप्लीट कर लिया है। अब जो सबसे बड़ा इनका मेजर जो चैलेंज होगा, वो नेक्स्ट गवर्नमेंट के अंदर हिंदुत्व 2.0 होगा, कि वो हिंदुत्व 2.0 के अंदर वो कौन-कौन से फैक्टर्स को जो है वो आउटलाइन करते हैं।
آپ نے پالیٹکس آف ہیٹ کی بات کی، تو وہ کیا پالیٹکس آف ہیٹ جو ہے وہ اس کو کنٹینیو رکھیں گے؟ مجھے کہیں نہ کہیں لگ رہا ہے کہ شاید اس کو رکھیں گے، کیونکہ اگر آپ ان کی الیکٹورل کیمپین میں دیکھیں تو 2 مساجد کا وہ اگین ذکر کر رہے ہیں، ایک وارانسی کے اندر ہے اور ایک I'm forgetting the name، وہاں بھی 2 مساجد ہیں جن کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیمولش کر کے وہاں پہ ٹیمپلز بنائیں گے. سو ٹیمپل پالیٹکس تو وہاں پہ رہے گی. دوسری طرف جو ہے وہ اس کے علاوہ اس میں کیا خد و خال آتے ہیں ہندتوا 2.0 کے اندر، وہ میرے خیال میں ہم آہستہ آہستہ آگے چل کر دیکھیں گے. جو آپ نے بات کی جو اور کافی انٹرسٹنگ جو میرے خیال میں ٹاپک ہے جس کے لیے الگ سے پروگرام ہونا چاہیے. دیکھیں اگر تو جیسے میں نے شروع میں کہا کہ 2/3 میجورٹی یا 330 یا اس سے زیادہ سیٹس کے ساتھ بی جے پی اور این ڈی اے 260-270 سیٹس کے ساتھ آتے تو ایک ہمیں کانفیڈنٹ اور پولیٹیکلی کانفیڈنٹ اور اکنامکلی بڑے امپاورڈ کنٹری کے ساتھ جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا. بٹ اس سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ کہ جہاں پہ اراؤنڈ 240 سیٹس جو ہے وہ بی جے پی کی پلس این ڈی اے کی کچھ سیٹیں ملا کر آپ ایک کولیشن گورنمنٹ بنا رہے ہیں، تو پھر فیکٹرز زیادہ تر جو بیسیکلی اگلے 5 سال ہیں وہ اب گورنمنٹ کے انڈین گورنمنٹ کے وہ انورڈ لکنگ اپروچ زیادہ رہے گی. وہ جو ان کے انٹرنیشنل پروجیکٹس تھے جس میں آپ گلوبل ساؤتھ کی بات کریں، وکشت بھارت کی بات کریں، اور اس کے علاوہ جو وہ یو این ایس سی کے اندر سیٹس کی بات کر لیں، یا اس طرح کے اور جو گلوبل ان کے جو اوور آل ایک ایمبیشنز تھے، وہ کہیں نہ کہیں آپ جو ہے وہ ان کے اوپر امپیکٹ آئے گا. پاکستان انڈیا ریلیشن شپ کے حوالے سے اگر میں بات کروں اسپیسیفکلی، تو پاکستان نے تو ہمیشہ بات کی ہے کہ ہم جو ہے وہ پیسفل اور ایک کارڈیل ریلیشن شپ رکھنا چاہتے ہیں اور اپنے تمام نیبرہڈ کے ساتھ. اور ہماری جو نیشنل سیکورٹی پالیسی ہے 2021 میں، اس میں بھی انہوں نے کلیئرلی اس کو آرٹیکولیٹ کیا ہے کہ اب ہم جیو اکنامکس اور اکنامکس کی طرف جانا چاہ رہے ہیں کہ جہاں پہ ہم پاکستان جو ہے وہ اپنے نیبرہڈ کے ساتھ وہ تعلقات بحال رکھے. لیکن یہ ایک وہ کہاوت ہے کہ تالی جو ہے وہ ایک ہاتھ سے نہیں بج سکتی، دونوں ہاتھوں سے بجے گی. تو پہلے 100 دن جو ہیں وہ پرائم منسٹر مودی کے امپورٹنٹ ہوں گے کہ جس کے اندر وہ لے آؤٹ کریں گے کہ کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ فارن پالیسی اور ڈومیسٹک پالیسیز کے اوپر جو ہے وہ بات کرنی ہے. لیکن اگین جو میری باٹم لائن ہے یا جو کنکلوژن ہے وہ یہ کہ اب وہ جو ایک فیکٹر تھا کہ اب ہمیں جو ہے ایک اتنا کانفیڈنٹ یا اتنے اگریسو بھارت کے ساتھ جو ہے وہ سامنا نہیں ہوگا ایز کمپیئر ٹو کہ اگر یہ 70 سیٹس ہو جاتی تو. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. تھینک یو ونس اگین. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم.